تہجد میں کون سے استغفار پڑھنے چاہیے اور کون سی تسبیحات کرنی چاہیے، آج مکمل ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ان تسبیحات سے اللہ رب العزت کون کون سے معجزات فرماتے ہیں اور استغفار کی طاقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج میں آپ کو تہجد میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور کون کون سا استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، بنے رہیے گا آخر تک۔ اللہ والو، تہجد کا وقت اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ نزول کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ والو، تہجد میں نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے افضل تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 2 پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بار بار پڑھنا تہجد کے وقت گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو مصیبتوں اور تنگیوں میں راحت دیتی ہے، مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تہجد میں بار بار پڑھنا اللہ کی مدد کو بلاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے، تڑپتی ہوئی روح کو سکون مل جاتا ہے، آپ کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ایک بہترین دعا ہے۔ اللہ والو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ رمضان کی دعا ہے لیکن تہجد میں بھی اس کا ورد انتہائی مؤثر ہے۔ تہجد میں اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا بے حد فضیلت کا حامل ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمات تہجد میں بار بار دہرائیں، یہ دل کو منور کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہر چیز ایک طرف رکھ کے جب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو میرا رب اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتا ہے آپ کی طرف دیکھ کر۔ ربی زدنی علما، تہجد میں مانگے جانے والی ایک جامعہ دعا ہے جو علم، فہم اور حکمت عطا کرتی ہے۔ اللہم اہدنی وسدنی، یعنی اللہ مجھے ہدایت دے اور درست راستہ دکھا۔ تہجد میں دل سے دعائیں مانگیں، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کر کے مانگیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پاکیزگی اور توبہ کی دعا کریں، اللہ سے خیر مانگیں، عافیت مانگیں۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یا رحمان یا رحیم ارحمنی، یہ بار بار دہرانے سے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، جنت کی طلب اور جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ دعا کیا کریں۔ رب حب لی من لدنک رحمہ، اللہ کی خاص رحمت کا سوال ہے جو تہجد میں خوب مانگا جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
सुल्तानी का, अल्लाह की अज़मत और जलाल की हम्द है ये। तहज्जुद में रोने से दिल नरम होता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहकर पुकारना इंतहाई बाबरकत है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन इबादिका स्वालिहीन, स्वालिहीन में शामिल होने की दुआ करें। तहज्जुद की दुआ को ख़त्म करने से पहले सल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम बार बार पढ़ना नूर अला नूर की अलामत है। अल्लाह वालो, सहरी के वक्त जब पूरी दुनिया नींद की वादियों में खोई हुई थी, एक जवान माँ खामोशी से अपने बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में नींद नहीं, नदामत और दर्द की नमी थी। उसकी बेटी बीमार थी, दोनों से दवाई असर नहीं कर रही थी। हर दर पर वो जा चुकी थी, हर वसीला इख्तियार किया, मगर सुकून कहीं नहीं था। वो दबे कदमों वज़ू खाने की तरफ गई, ठंडे पानी से वज़ू किया, दिल की गर्मी आंखों से बहने लगी। जाए नमाज बिछाया, सजदे में गिर गई। सजदा ऐसा कि गोया सदियों का बोझ लेकर गिरी हो। या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुझे पुकारने में देर की, मगर अब तेरी दहलीज पर हूँ। अल्लाह वालो, उस औरत ने दिल की गहराइयों से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का विर्द शुरू किया। हर इस्तगफार के साथ वो रोती रही, जैसे दिल को धो रही हो। उसकी जुबान से या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस भी निकलता रहा, और फिर उसकी आंखें आसमान की तरफ उठ गई। तू रब है, तू शिफा देने वाला है, तू माफ़ करने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन भी है। मेरी बेटी पर रहम कर। या अल्लाह, मुझे बदल दे, मेरी बेटी की बीमारी को शिफा में बदल दे। सारी रात वो औरत तहज्जुद पढ़ती रही, कभी सजदे में, कभी दुआ में, कभी खामोशी में अल्लाह से हम कलाम होती रही। उसकी तस्बीहात में एक दर्द था, एक तलब थी, और एक सबसे बढ़कर यकीन था। चंद दिन बाद ही उस औरत की बेटी की तबीयत मोजज़ाती तौर पर संभलने लगी। डॉक्टर्स हैरान हो गए, मगर वो औरत जानती थी कि वो दवा नहीं, दुआ थी। वो तस्बीह के मोती थे जो उसकी आंखों से धुल चुके थे आंसुओं की सूरत में। अल्लाह वालो, वो उस औरत ने हर रात अल्लाह से राज़ो नियाज करना शुरू कर दिया। हर रात तस्बीहात के ज़रिए दिल को सजाती, और हर रात इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने रब के करीब हो जाती। अगर आप चाहें तो आप भी अपने रब की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह वालो, तौबा, शिफा, रिज़्क़, हदायत, वालिदैन, औलाद, ये सब चीज़ें आप अपने रब से मांग सकते हैं सिर्फ़ एक सजदे में। जब आप सजदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ मेरा रब ऐसे होगा जैसे आप अपने रब के अर्श के सामने बैठे हैं और सजदे में गिरे हुए हैं, अपने रब के कदमों में हैं। आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मेरा रब मुझे आगे से जवाब दे रहा है, लब्बैक या अब्दी, क्या मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, मांगो। तो जब अब रब खुद कहता है कि मांगो मेरे बंदे, तुम्हें क्या चाहिए, तो उस वक्त भी अगर हम ना मांगे तो हम कितने बदनसीब हैं। अल्लाह वालों, एक और वाक़या आपको सुनाती हूँ जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा तहज्जुद के हवाले से। एक आम सा नौजवान मगर दिल का नरम, ज़िंदगी की दौड़ में वो भी बाकी सब की तरह उलझा रहता, काम, थकन, सुकून और दिल में अजीब सा खला रहता। 5 वक्त नमाज कभी कभार रह जाती, कुरान को छुए भी कई कई दिन गुजर जाते, लेकिन दिल के किसी कोने में रोशनी की चिंगारी बाकी थी। एक रात उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल, दवाइयाँ, रिपोर्ट सब कुछ करके भी उस नौजवान को कुछ हासिल ना हुआ। वो बेबस और मजबूर था। डॉक्टरों ने कहा कि अब सिर्फ दुआ ही कुछ कर सकती है, दवाओं का काम नहीं है। ये जुमला दिल में तीर बनकर लगा। वो नौजवान रात गए, अस्पताल के कमरे से निकला, वज़ू किया और अस्पताल की छत पर जाए नमाज बिछा दी। तहज्जुद की पहली रकत में वो रो दिया, दूसरी रकत में वो टूट गया और तीसरी में वो सजदे में बिखर गया। या रब, तू जानता है मैं कैसा हूँ, मैंने तुझे भुला दिया, मगर आज तुझे पूरी सच्चाई से पुकार रहा हूँ। ए अल्लाह, मेरी माँ को शिफाए कामला आजला अता फरमा दे और मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। फिर वो मुसलसल दोहराता रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसअत कुल्ल शैइन अन तशफी उम्मी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और ज़ुबान से दिल का दर्द। सुबह जब वो नीचे आया
तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, रिपोर्ट्स बेहतर थीं। डॉक्टर हैरान परेशान हो गए। वो नौजवान जान गया, जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो आसमान का दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई। अब वो हर रोज़ तहज्जुद पढ़ता, हर रोज़ दुआएं करता, माँ के लिए, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, क्योंकि एक रात के सजदे वाली दुआ ने उसे रब से मिला दिया था। अल्लाह वालो, एक नौजवान की जिंदगी गुनाहों से लबरेज थी। शराब पीता, झूठ बोलता, गलत सोहबत, बेहयाई, शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जो उसने ना किया हो, मगर जिंदगी की चकाचौंध उसके दिल को जलाने लगी। रातों को नींद उड़ गई थी और दिल की बेवजह दिल बोझल रहता था। एक रात वो नौजवान बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक आंखों से आंसू बहने लगे, बगैर किसी वजह से। दिल में ऐसे था जैसे कोई पुकार रहा हो या कोई अंदर से कह रहा हो, बस कर, वापिस आ जा, अब तेरा रब तेरा मुंतजिर है। तो उस नौजवान ने वजू किया, पहली बार शायद बरसों बाद जाए नमाज बिछाया और सजदे में गिर गया। जुबान पर अल्फाज खुद ब खुद जारी हो गए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। वो रोता रहा, दोहराता रहा, जैसे दिल का हर जख्म बह रहा हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। उस रात उस नौजवान ने सिर्फ इस्तिग़फ़ार नहीं किया, उसने खुद को रब के हवाले कर दिया। कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। अल्लाह वालों, नमाज की पाबंदी करने, वालिदैन की खिदमत करना, बुरी सोहबत से निजात, जैसे कोई इंसान नया पैदा हुआ हो। एक दोस्त ने पूछा, सुलेमान ये सब कैसे हुआ? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा, इस्तग़फ़ार। बस सच्चे दिल से अपने रब से मैंने तौबा की, माफ़ी मांगना शुरू की। उसने बाकी सब कुछ संवार दिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया, मुझे सीधे रास्ते पर चला दिया। मैं सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआएं मांगता था, मेरे रब ने मेरा रास्ता सीधा कर दिया। अल्लाह वालों, तहज्जुद में जो इस्तग़फ़ार करते हैं कसरत के साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं, और तीसरा कलमा अपने रब की हम्दो सना बयान करते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, उनकी दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे मोजज़ात, ये मैंने आपको जो भी वाक़या सुनाए हैं ये सच्चे वाक़यात थे, क्योंकि इनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि जिसने तहज्जुद को पकड़ा और तहज्जुद में इस्तग़फ़ार को पकड़ा, अपने रब की हम्दो सना को पकड़ा, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़ात किए हैं कि आपका गुमान भी नहीं हो सकता। अगर यकीन नहीं आता तो इस तहज्जुद की नमाज को आजमा कर देख लो। तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, तहज्जुद में लंबे सजदे करो, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे सजदे किया करते थे और इस्तग़फ़ार करते थे, अपने रब से उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करते थे। आप भी अपने लिए इस्तग़फ़ार करें, अपने वालिदैन बहन भाइयों के लिए इस्तग़फ़ार करें, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तग़फ़ार करें, फिर देखें मेरा रब कैसे करम करता है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, आपके दिल को सुकून, रूह को सुकून, ऐसे मुतमईन आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, हर काम संवरने लगेगा, बिगड़ियाँ बन जाएंगी।